اسلام نے جو ہے نکاح کیا. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اگر وہ جو ہے بہو ہے تو کیا بہو سے جو ہے شادی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. لیکن قرآن میں بہو سے شادی کی ذکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے اس بات کو بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ زید ان کا بیٹا نہیں ہے. بھلے جو ہے پیغمبر اسلام اس کو اپنا بیٹا کہتے رہے، لیکن قرآن نے اس کو نکار دیا کہ زید تمہارا بیٹا نہیں ہے. اس کی وائف تمہارے لیے بالکل جو ہے مطلب اس کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، وہ تمہاری بہو نہیں ہے. یہ بات قرآن کلیئر کر رہا ہے. ٹھیک ہے مولانا ظفر القادری صاحب آپ بتائیں. دیکھیے انہوں نے جو بار بار زید بن حارثہ کا نام لے رہے ہیں، میں نے شروع سے وہ چوتھے پارے کی آیت پڑھی کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں، اور پھر انہوں نے ایک کہا کہ سورت کا نام لیا کہ وہ ان کی سگی ماں نہیں ہے. قرآن کی وہ آیت پڑھی. یہ صرف ترجمہ کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں یہ بیان نہیں کرتے. اس کو کلیئر میں کرتا ہوں. ایک بات دیکھیے، یہ تو ضروری ہے کہ ہمارے یہاں دودھ دو مائیں، ایک مائیں حقیقی ہے، ایک ہوتی ہے اخیافی، ایک ہوتی ہے رضائی. مطلب یہ ہے دو ماؤں کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پیدا ہوئے ہم کسی کے، لیکن ہم نے دودھ پیا کسی کا. اس زمانے میں دائیوں کے اعتبار سے دودھ پلانا ہوتا تھا، کچھ کمزور ہوتے تھے، یا عرب کا ایک زمانہ تھا کہ بچے جب پیدا ہو جاتے تھے تو لوگ جو غریب ہوتے تھے وہ چھوٹے بچوں کو لے جا کر دودھ پلانے کے لیے لے جاتی تھی. ان سے کچھ پیسہ ملتا تھا تو وہ اپنے بچوں کی پرورش کر لیا کرتے تھے. تو وہ اب جس کے حساب سے دودھ پیا ہے اس کے بھی بچے ہیں، اور جس کا بچہ لے کر کے جا رہی ہیں وہ بھی ایک بچہ ہے. تو وہ ماں جس کا پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے ہیں وہ، لیکن اس کا دودھ پیا ہے، تو اس کی جتنی اولاد ہے وہ اس کے رضائی بھائی بہن کہلائیں گے. ٹھیک ہے. اور جو ایک میں اس میں آ رہا ہوں میڈم، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ گول مول بولتے ہیں. بہت سارے لوگ دیکھیں گے جب تفصیل ان کے ذہن میں جائے گی اور یہ تو قرآن کے خلاف ہی بولیں گے. تو اس لیے کہ اس کو کلیئر ہو جائے چاہتا کہ جو ناظرین دیکھیں. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ. اور ایک بات سنیے، وہ ان کا بھی ذکر آ گیا کہ جن سے زندگی میں ہم نکاح کر ہی نہیں سکتے، وہ ہمیشہ ہمارے لیے حرام ہے. ان کی تفصیل قرآن نے الگ بیان فرما دی ہے. وہ بھی الحمدللہ قرآن کی حقانیت سچائی پر مبنی ہے اور تھا، اور انشاءاللہ قیامت تک مبنی رہے گا. سچی والا بھائی جیسے لوگ لاکھ قرآن کی مخالفت کریں، اس کی حقانیت پر سوال کریں، ان جیسوں سے قرآن نہ جھوٹا تھا نہ ہوگا. مولانا قادری صاحب انہوں نے تو یہ کہا، شروعات میں ہی کہا سچ والا صاحب نے کہ دودھ کا رشتہ بالکل جائز ہے، لیکن منہ بولا رشتہ، یعنی کہ اگر آپ نے اپنے دوست کی بیٹی کو کہا کہ بھائی یہ میری بیٹی جیسی ہے یا میری بہن جیسی ہے، تو وہ نہیں ہے اسلام میں قبول. وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ دودھ کے رشتے کو نہیں جھٹلا رہے ہیں. ہاں وہ بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیے تو جو میں نے دودھ والی بات کہی، وہاں خونی رشتہ نہیں، وہاں دودھ کا رشتہ ہے. اور یہ مذہب اسلام اس شدت کو کم کرنے کے لیے جو اس دور میں عرب کی زمین کا مسئلہ، عرب میں لوگ کیا کیا کرتے تھے. آج تو ہندوستان کی سرزمین پر اتنے بتوں کی پوجا ہوتی بھی نہیں، اتنے بت ہے ہی نہیں. وہاں تو کروڑوں ہزاروں کی تعداد میں تھے. اور میں نے کلیئر کہا تھا کافر کوئی گالی نہیں ہے. کافر اور مومن کا مطلب کیا ہے؟ مومن کا مطلب یہ ہے میرے سامعین اور ناظرین، اگر وہ مسلمان ہے تو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، سچ اور جھوٹ پر بالکل تمام چیزوں کو چھوڑ کر للہ باللہ کر کے بالکل سچی زندگی گزارے، وہ ہے مومن. اور اگر اس نے کسی چیز کا مسلمان ہے، اگر اس نے کسی چیز کا انکار کر دیا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. ایسا نہیں، کافر گالی نہیں، کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا. آپ نے مجھے چینل پہ بلایا، کال کی، میں نے انکار کر دیا کہ بھائی میں آج آپ کے چینل پہ نہیں آؤں گا، تو یہ میرا انکار. اس کا مطلب یہ ہوا میں چینل پر آنے سے جو میں نے انکار کیا میں اس کا کافر ہو گیا. کیا رکشا بندھن کا تیوہار ایک مسلمان اگر منانا چاہے تو منا سکتا ہے؟ اس میں سے کوئی بت پرستی نہیں ہے، اس میں تو صرف ایک دھاگا باندھنا ہے، ڈور باندھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میڈم، مذہب اسلام کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے جو تانا کشی رکھتے ہیں لوگ کہ اسلام میں یہ ہے، اسلام کا کلی طور پر یہ ہے کہ حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی دل آزاری یا بھٹکاؤ یا نہ ہو. ہاں مذہب اسلام میں ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے کہ شرک ایک چیز ہوتی ہے. شرک کا مطلب میں اپنے سامعین اور ناظرین جو اس تمام نیوز کو دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں،
शिर्क बेहतरीन गुनाह है, बदतरीन गुनाह है। शिर्क का मतलब ये होता है जिसकी हम इबादत करते हैं परवरदिगारे आलम, उसकी ज़ात या सिफात में किसी को शरीक मान करके उसकी इबादत करना, उसकी परस्तिश करना, उसकी पूजा करना, ये शिर्क है। अब आते हैं अपन मौजू के ऊपर। और इसके अलावा जो हर बात पर कुफ्र का मतलब होता है, ये कुफ्र जो है अरबी लफ्ज़ है, इसके माना आते हैं इनकार करना, नाफरमानी करना। कुफ्र कोई बहुत बड़ी गाली नहीं है, बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं है कि सर पे आकर के किसी के गिर जाए और वो फना हो जाए। आज मैं बता देना चाहता हूँ न्यूज़ नेशन की जानिब से कि कुफ्र के माना होते हैं इनकार, और ये इसमें फ़ाइल का सीगा अरबी के एतबार से काफिरून, शाबिरून, शाकिरून, जाबिरून, काहिरून, माहिरून, ये सब इसमें फ़ाइल के सीगे हैं। इसमें फ़ाइल का मतलब होता करने वाला। मिसाल के तौर पर एक चीज़ किसी ने कहा कि भाई ये आप कर दीजिए, उसने उसका इनकार कर दिया तो उसके ऊपर कोई जुल्म सितम नहीं होगा, तो काफिर कोई गाली नहीं है। काफिर के माना इनकार करने वाला। अब वो जिस शय का इनकार करेगा वो उसका मुनकिर हो जाएगा। अब आइए इस टॉपिक के ऊपर। अगर अभी किसी ने, चाहे वो उसकी दूध शरी की बहन नहीं है, दूध शरी का भाई नहीं है, लेकिन उसने दिल के साथ उसको अपनी बहन माना और उसकी रक्षा की, रक्षा के माने हिफाजत, सियानत, दियानत, अमानत, मोहब्बत, लगन के साथ अगर उसने किसी गैर मुस्लिम बहन को, बेटी को अपनी बहन मान लिया, चाहे वो दूध शरीकी नहीं, और वो तमाम चीज़ें उसने ज़िंदगी में उसके साथ की जो अपनी दूध वाली बहन के साथ, खून वाली बहन के साथ कर रहा है, तो कुरान इसकी इजाज़त देता है। इतना अछूता मजहब नहीं है कुरान, या इतना ओछा नहीं है। दुनिया में रहने के बाद अगर किसी गैर मजहब की बेटी की अगर हम हिफाजत करने, उसकी मोहब्बत करें, तो कुरान इसकी इजाज़त देता, उसका मुखालफत कुरान करीम नहीं करता। ठीक है सचवाला साहब, यहाँ पर तो मौलाना ज़फरुल कादरी साहब कह रहे हैं कि कुरान ऐसा कोई अछूत मजहब नहीं बनाता है इस्लाम को। वो कहता है कि अगर आप किसी की रक्षा करना चाहें, यानी कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहें, किसी को दिल से कबूल करें अपनी बहन के तौर पर, जो रिश्ता दूध की बहन से रखते हैं वही रखें, तो बिल्कुल इसकी इजाज़त है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कलाई पर राखी भी बंधवा ले तो कोई गुरेज नहीं। जी नहीं, कुरान की ऐसी कोई आयत मौलाना की जो है बात की तायीद नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। कुरान इस मामले में बिल्कुल क्लियर कट है कि जिसका रिश्ता खून का है या दूध का है वही उसकी बहन कहलाएगी, वही उसकी बहन है। वैसे भी काफिर की बहन या काफिर की बेटी किसी मोमिन की बहन हो ही नहीं सकती जब तक वो ईमान ना डाले। कुरान के मुताबिक ये बात जो आप जो मौलाना फरमा रहे हैं बिल्कुल भी गलत है। कुरान की कोई एक भी आयत मौलाना की तायीद नहीं करती, जबकि कुरान इस मामले में कहता है कि किसी को छू भी नहीं सकते इस नियत से कि जो मेरी बहन है, बहन हो ही नहीं सकती। बल्कि कुरान तो ये कहता है कि किसी को मुंह बोला बेटा या मुंह बोली बेटी में नहीं बना सकते। कुरान ने ये मुंह बोले रिश्ते की जो है बिल्कुल नफी कर दी। कुरान ने साफ साफ कहता है कि जो तुम्हारी माओ की जो है जो बेटी है, यानी जो है जो तुम्हारी माओ का जो है जो बेटा है वही तुम्हारा भाई है। इस मामले में कुरान बिल्कुल दो टोक है। नहीं मतलब तो अगर एक मुस्लिम किसी काफिर की बेटी को अब हम ना कोई बहन बना सकते हैं ना बेटी बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कुरान इसकी इजाजत नहीं देता। कोई एक भी आयत मौलाना की जो है की बात की तायीद नहीं करती। सचवाला साहब, तो यानी मौलाना साहब जो कह रहे हैं उसकी इजाजत कुरान नहीं देती है। मौलाना साहब सिर्फ एक अच्छाई के नाते आप क्या करते हैं वो सिखा रहे हैं, मतलब कुरान और हदीस में कहीं नहीं लिखा। जी हाँ, नहीं, मौलाना की बात एक इंसान होने की हैसियत से बिल्कुल सही है। मैं मौलाना की बात की तायीद करूंगा। मैं मौलाना से कहूंगा कि आपके दिल में एक इंसानी दिल, आपके सीने में एक इंसानी दिल है जो धड़कता है इंसानियत के लिए, मगर कुरान मौलाना की किसी बात की तायीद नहीं कर रहा। नहीं, अगर एक मुस्लिम परिवार अगर एक मुस्लिम परिवार रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहे कि भाई एक मुस्लिम दंपत्ति है, उनके बच्चे हैं, बेटा बेटी, अगर वो आपस में रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहे, उसकी इजाजत देगा या उसकी भी नहीं देगा? नहीं, देखिए कि अगर मेरी जो है सगी बहन है या मेरी जो है मतलब दूध शरीक बहन है तो मैं उसी के हाथ पर जो है राखी बांध सकता हूँ। अच्छा, राखी बंधवा सकते हैं। अगर राखी बंधवाने की मनाही नहीं है, जैसे दिवाली मनाने की मनाही है, होली के रंग खेलने की मनाही है, जैसे होली के रंग खेलने की मनाही है, ऐसे दिवाली ये राखी बंधवाने की मनाही नहीं है। नहीं देखिए,
یہ جسے آپ ہولی کا رنگ کہہ رہے ہیں، اور دور سے اگر کوئی رنگ پھینکتا ہے تو اس میں کوئی حد نہیں ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ پر راکھی باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نامحرم کو کوئی ایک مرد جو ہے ہاتھ لگا رہا ہے، ہاتھ ٹچ کر رہا ہے، اس کی اجازت نہیں دیتا قرآن اور اسلام. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں تک کہ اگر اس کی دودھ شریک بہن ہے یا اس کی سگی بہن ہے، اس کا خونی رشتہ ہے، تبھی جو ہے یہ چیز جو ہے ممکن ہے، نہیں تو اس کے لیے جائز نہیں ہے قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق. ٹھیک ہے مولانا صاحب آپ بتائیں گے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کردار صحابہ، کردار تابعین، تابعین، ہمارے صوفیاء اکرام، بہت سارے واقعات بے شمار ایسے ہیں کہ وہ ان کی دودھ شریکی نہیں تھے، لیکن انہوں نے ان کو گود لیا. گود لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پرورش ان کا کوئی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ آج سے تم ہماری بیٹی ہو، ہم رکھیں گے، تمہاری رکشا کریں گے، تمہاری حفاظت کریں گے. ان کو گھر لائے، ان کو بیٹی جیسا سلوک کیا. جب جوان ہو گئیں تو ان کو جو بھی ان کے پاس تھا حتی الوسع کوشش اور امکان کے بعد ان کی شادی کر کے ان کو گھر روانہ کیا. اسلام میں اس کا دخل ہے اور اس کے معنویت ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے یا پڑوس میں پریوار میں ایسے لوگ رہتے ہیں وہ کسی کی دھرم کے ماننے والے ہوں، اگر تمہاری ہمت و طاقت و جرت ہے تو اس کی ذمہ داری لینے کے بعد، ذمہ داری قبول کرنے کے بعد اس کے ساتھ وہ تمام حقوق ادا کرو جو ایک باپ کرتا ہے، ایک بھائی کرتا ہے، ایک دادا کرتا ہے، ایک ماما کرتا ہے. ان محرمات کی طرح اس کی حفاظت کرو جو قرآن کریم میں چوتھے پارے میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خالاتکم و عماتکم پوری آیت کریمہ ہے، اس کے ساتھ اس کی حفاظت کرو. وہ نہیں ہماری خون شریکی ہے لیکن وہ اس دھرتی سے پیدا ہو کر کے اس نے جنم لیا ہے. ہر انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس کی حفاظت اور رکشا کرے. سچوالا صاحب آپ کسی آیت کا حوالہ دے سکتے ہیں جس سے آپ مولانا صاحب کی باتوں کو جھٹلا سکیں؟ جی ہاں دیکھیے قرآن کی سورہ احزاب میں یہ بات کلیئر کٹ آئی ہے کہ جو ہے نبی کا، قرآن کے نبی نے ایک لڑکے کو اپنا جو ہے لے پالک بیٹا بنایا تھا جس کا نام ہے زید بن حارثہ. وہ تقریباً جو ہے کئی سال تک نبی کے ساتھ رہا اور جو ہے زید بن حارثہ نے سچی والا بھائی وہ دیکھیے ارے میرے بھائی ایک منٹ زید بن حارثہ نام ادب سے لیجیے، نام ادب سے لے لیجیے. زید بن حارثہ میری بات سنیے، نام ادب سے لیجیے، نہیں وہ نام ادب سے لیجیے، آپ نام اچھے سے لیجیے، نام ادب سے لیجیے، کیسے نام لیں وہ نام ادب سے لیجیے. مجھے کچھ نہیں آپ بیان کیجیے، لیکن زید بن حارثہ کوئی ایسی ویسی ذات کا نام نہیں ہے. ہاں بس نام ادب سے لیجیے. میں قرآن کے نبی کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ایک بچے کو لے پالک لیا تھا جس کا نام ہے زید بن حارثہ. کئی سال تک زید بن حارثہ نبی کے ساتھ رہے اور زید بن حارثہ نے جس وقت شادی کی زینب کے ساتھ، یہ شادی کے کئی سال کے بعد نبی نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا. جس بیٹے نے جس لڑکی سے شادی کیا کچھ عرصے کے بعد قرآن کے مطابق نبی نے اپنی بہو سے شادی کر لیا اور پھر یہ کہتے ہوئے کہ آج کی تاریخ سے لے پالک والا معاملہ بالکل حرام ہے. وہی بیٹے تمہارے بیٹے ہیں، وہی بھائی تمہارا بھائی ہے جن کو تمہاری ماؤں نے جو ہے جنم دیا. کسی اور کا بیٹا، کسی اور کی بیٹی ایک مومن کے لیے وہ جو ہے کسی بھی صورت میں نہ تو بہن ہے نہ تو بیٹی ہے. یہ بات قرآن کلیئر کرتا ہے، کلیئر، اس میں کوئی 1% بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اس آیت کو پڑھ کے بتائیے جو آپ بول رہے ہیں. مولانا قادری صاحب میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ہاں بتائیے. اس میں جو ہے سن لیجئے، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. دیکھیے یہ سورہ احزاب 33 کی آیت نمبر 37 ہے. ہاں آیت پڑھیے محترم. ٹھیک ہے، ارے میں پڑھتا ہوں. جی. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اچھا اس سے پہلے کیا آیا ہے دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں مجھے آپ
तजव्वुज़ू का मतलब क्या होगा? सुनिए सुनिए, लफ्ज़ तजव्वुज़ू, मेरी बात सुन लीजिए। तजव्वुज़ू पर यानी जो है कुरान ये कह रहा है वही बेटे वही भाई, तुम्हारा बेटा तुम्हारा भाई देखिए, है जिनको तुम्हारी माँ ने जन्म दिया है। देखिए, कोई लेपालक का तसव्वुर मेरी बात कुरान सुनिए में ना, नहीं है। मैं लफ्ज़ तजव्वुज़ू पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ, वो पूरी आयत का तर्जमा। लफ्ज़ तजव्वुज़ू से आपने क्या समझा जो कुरान में आया है, वो बताइए, सिर्फ लफ्ज़ तजव्वुज़ू। अरे मेरे भाई, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। देखिए, तो आप पूरी आयत को नहीं, तजव्वुज़ू का मतलब क्या है? सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। बात तो जो आप ये फरमा रहे हैं मौलाना, सुन लीजिए मेरी बात। आप ये जो फरमा रहे हैं कि कुरान यानी ले पालक की इजाजत देता है, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। कुरान की कोई एक भी आयत ले पालक की इजाजत नहीं देती, चाहे वो बेटी हो या बेटा। मैंने जो कहा आप उसको बताइए। करना तो दूसरी बात, आपकी बात की मुखालिफत कर रही है। नहीं, आप मुखालिफत करिए। दूसरी मैंने जो आपसे बात कही है, आप पूरी आयत को जो पढ़ रहे हैं वो सही है। मैंने लफ्ज़ तजव्वुज़ू का मतलब पूछा। लफ्ज़ तजव्वुज़ू इसमें फाइल है, इसमें लफ्ज़ तजव्वुज़ू नहीं है, इसमें लफ्ज़ तजव्वुज़ू नहीं है। अब क्या है, कहा गया है। हाँ बताइए। अरे सुनिए, मैं आपकी इसी बात की तो जो है मतलब मैं आपको उसकी क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ ना। सबसे पहले तो अरे सुन लीजिए मेरी बात। अरे भाई सुन तो रहे हैं, पढ़ते हैं। अरे आप बोल पढ़, सुन लीजिए ना मेरी बात। बोलेंगे तो जहाँ बोलने की जरूरत होगी तो बोलना तो पड़ेगा। अरे जनाब आली, कुछ देर मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं बोलूंगा ना। आप बीच में टपक पड़ते हैं। तो टपक तो इसलिए पड़ेंगे जब आप गलत बोलोगे तो बोलना पड़ेगा भाई। मैं आपको पूरा मौका दूंगी, एक बार जरा उनकी बात खत्म हो जाए फिर आप उनको काउंटर कर दीजिएगा। बताइए जी सचवाला साहब। कुरान इस मामले में कह रहा है जो ले पालक की इजाजत कुरान नहीं देता, भले वो बेटी हो या जो है बेटा हो या जो है या भाई हो या बहन। यहाँ असल हमारा सवाल क्या है? सवाल ये है कि रक्षाबंधन उसी सूरत में जो है जायज है या कुरान के मुताबिक जो उसकी सगी बहन है या दूध शरीक बहन है, जो नामुहरिम है उसके साथ उसको टच करना या उसको अपनी बहन नहीं कह सकता। कुरान किसी को भी बहन या बेटी कहने की इजाजत नहीं देता। ठीक है मौलाना साहब जी, मैंने इस पर तो अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया है मैडम। देखिए, कुछ मुस्लिम बहनें ऐसी हैं कि जो वो बापर्दा रहती हैं, वो कोई सर्विस नहीं करती, कहीं नहीं जाती, मार्केट में भी नहीं जाती, भाई बहन करते हैं, उनका एक ताल्लुक़ अलग है। वो बहनें जो हमारी जॉब करती हैं, ऑफिसों में जाती हैं, बापर्दा हैं, सब कुछ हैं, रहती हैं, अगर वो हाथ को बुलंद करने के बाद जो उनके ऑफिस वगैरह में काम करती हैं, अगर उन्होंने अपने हाथ को इस तरीके से बुलंद करके उसको भाई समझ ले और उसने भी कुरान की और हदीस की बात अलग है, बेहतर है, इंसानियत के नाते वो आ रही है, उसने कहा कि तुम मेरी बहन हो और वो फिर बहन होने का पालन करके बहन होने के तमाम हुकूक वो अदा करता है, वो बहन होने के नाते अदा करती है और उसने एक कागज़, एक बंधन का उसका धागे का टुकड़ा या जो भी आजकल मार्केट में बिनती हैं, अगर उसने वो हाथ में बांध दिया और वो निभाते हैं दोनों, वो बहन बन के निभाती है, वो भाई होकर के निभाता है, तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। इंसानियत के नाते ये रिश्ता सही हो सकता है, लेकिन क्या इस्लाम के नाते ये रिश्ता सही है? देखिए, इंसान जहाँ ये हमारा मजहब बहुत फितरत भी है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा मा कसबत। इस्लाम में इकराह नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, तकलीफ दे नहीं है, सबसे आसान मजहब है मजहब इस्लाम, ज़बरदस्ती नहीं करता। ला युकल्लिफु, कल्लफा युकल्लिफु ये फ़ेल मुज़ारे है और फ़ेल मुज़ारा दो माना के लिए आता है और ये बाबे मुफ़ालत से है। मैं पूरे इस कुरान की फसाहत व बलागत, मानी, इरफान, कुरान के 70,450 उलूम हैं, उसके एतबार से मैं बात करना चाहता हूँ कि ये फ़ेल मुज़ारे है, युकल्लिफु, इसका माद्दा आता कल्फ, बर्दाश्त करना, उसी से फ़ेल मुज़ारे है। कल्लफा युकल्लिफु तकलीफ़न फ़हुव मुकल्लिफुन, किसी को ना तकलीफ़ देता है ना देगा, कुरान की साफ तफसील है। इंसानियत बेहतरीन ज़िंदगी है, इंसानियत नहीं होती मज़हब इस्लाम इतना आगे नहीं बढ़ता। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों ने पत्थर बरसे, उन्होंने कभी पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दिया, लोगों ने गालियां दी, उनकी राहों में कांटे बिछाए गए, उनकी राटों में कूड़ा डाला गया, कभी नहीं किया, उनको माना, गले लगाया, कभी इस्लाम के खिलाफ उन्होंने कोई चीज़ नहीं की, तभी तो लोग आते चले गए, हल्का बगोशे इस्लाम होते चले गए, छोटा सा शिराजा था, आज पूरी दुनिया में ये मुंतशिर
मुर्शिद क्या होकर किसी ये लहला जैसे सचवाला साहब ने कुरान, सरसब्द शादाब है और ठीक ये है। चमन लहरा रहा मौलाना है। कादरी लोग साहब। मान भी रहे हैं और ना भी मान रहे ठीक है, हैं। मौलाना जो मान रहे हैं उनके लिए सच्चा है, जो इनकार करते हैं वो उससे इनकार करते ठीक रहे। है, मौलाना हमें कोई कादरी साहब, दुश्वारी नहीं। जैसे सचवाला साहब ने अपनी बात का समर्थन करने के लिए कुरान और हदीस और उसके इंसिडेंट का हवाला दिया, क्या इस बात को जायज ठहराने के लिए कि अगर कोई अपने मन से किसी को अपना भाई और बहन स्वीकार कर लेता है तो ये रिश्ता इस्लाम में जायज है, आप किसी हदीस या कुरान का हवाला दे सकते हैं? ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा मा कसबत अयदीहिम, मैंने कुरान का हवाला दिया। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व खलातुकुम व अम्मातुकुम, उसका हवाला दिया। मुहर्रिमात होना जरूरी है कि जिनसे निकाह हराम है उनका भी दिया। और सचिव वाला साहब ने जो आयत पढ़ी मैंने उसका मतलब पूछा, वो बात को घुमा के ले गए। यहाँ तो हर चीज का जवाब है, मैं तो उसका जवाब दे रहा हूं मैडम। जो लोग कहते हैं कि मजहब इस्लाम बड़ा कड़क है, बड़ा सख्त है, बड़ा शिद्दत वाला है, कुरान कहता ला युकल्लिफु नफ्सन, किसी जान को, किसी इंसान को, इंसान में मर्द भी है औरत भी है, वसा उसकी ताकत के एतबार से उसको तकलीफ नहीं देता। जो है उसको मानो, उसका सम्मान करो। इतना मुलायम, इतना लचकदार, इतना मुलायम कोई मजहब ही नहीं है जो मजहब इस्लाम। सचवाला साहब, आपने हवाला सुना जो यहाँ पर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कादरी साहब ने दिया है, आपने उनकी तमाम बातों को सुना है, तो फिर आप क्यों ये गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं इस्लाम से ज्यादा लचीला मजहब ही नहीं है और इस्लाम इजाजत देता है मुंह बोले बहन और भाई बनाने की। ने सुन लीजिए, हर दही वाली अपने दही को जो है बिल्कुल मीठा कहती है। यहाँ बात वो नहीं हो रही, जो टॉपिक है, टॉपिक कर की तायीद में मौलाना के पास कोई ना एक कुरान की आयत है ना कोई हदीस जो है सही हदीस है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं। जो अभी पढ़ा वो क्या था? आप टपक पढ़ते हैं बीच में। अरे जब आप ऐसी बात करोगे तो टपकना जरूरी है। सुन रहा हूँ, आपके पास एक भी कुरान की आयत नहीं है। आपकी बात की ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा मा कसबत अयदीहिम, कुरान नहीं तो क्या है? अरे जनाब आली, हुर्रिमत अलैकुम आप मुझे बोलने नहीं देते, आप मुझे बोलने नहीं देते, खुद ही बोले जा रहे हैं। कुरान नहीं तो क्या है? अरे यार, बातों से कोई आप अपनी बात की तायीद नहीं कर सकते। ठीक है मौलाना कादरी साहब ने, ठीक है मौलाना कादरी साहब, मैं पूछ रही हूँ, आप एक मिनट, आपने सचवाला साहब, आपने तीनों उनकी, देखिए मैं नहीं समझती हूँ ये भाषा, ना मैं ये मजहब समझ रही हूँ, मैंने सवाल उठाया और आप दोनों को कार्यक्रम में बुलाया ताकि सही बात सामने जा सके। कादरी साहब ने जो आयतें पढ़कर सुनाई, जो रेफरेंसेस पढ़कर सुनाए, Netflix is one of the most well-known companies that has उन्हें गलत साबित करें। अरे नहीं जनाब, नहीं मोहतरमा, कादरी साहब वो सारे कुरान पढ़ रहे हैं जिसका असल टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देखिए रक्षाबंधन पर हमारी खास पेशकश में हूँ आपके साथ ज्योति तनेजा वसीम। देखिए रक्षाबंधन का इंतजार, यही कहना चाह रहा हूँ कि जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है, सबसे पहली बात तो क्लियर सुन लीजिए। एक मोमिन किसी काफिर की लड़की, किसी उसकी बेटी को अपनी बहन या बेटी नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। भाईजान एक बात, कुरान इस बारे में बिल्कुल क्लियर करता है। यही सवाल होगा, इस काफिर से आप क्या सुन तो लीजिए, आप फुतूलिया जब से आप जो है बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, आप मुझे कुछ बोलने दीजिए ना, सुनना नहीं है आपको। जहां आप कहेंगे तो थोड़ा बात क्लियर होती जाएगी ना। एक भी आयत नहीं है आपके पास। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुरान काफिर और मोमिन की बिल्कुल दरार डालता है। और किसी काफिर की बहन, अरे मोमिन और काफिर में आप फर्क बयान कीजिए। मोमिन और काफिर का फर्क बयान कीजिए, नहीं तो मैं करता हूं, मैं बताता हूं भाई। नहीं, हाँ, अरे सुनते भी नहीं आप, जो है आप जब से कहे जा रहे हैं, लेकिन जो है सुनना नहीं होगा। अरे मैं कह रहा हूँ, मेरी बात भी सुनना नहीं है आपको। नहीं, मैं सुनूंगा मेरे भाई, नहीं ऐसी बात नहीं, मैं आपको सुनूंगा। कादरी साहब एक बात सुनिए, कादरी साहब आपने अपनी पूरी बात रखी, 5 मिनट उन्हें बिना 5 मिनट बिना रुके उन्हें भी बोलने दीजिए ना। कादरी साहब आपने अपनी पूरी बात रखी है, 5 मिनट बिना बोले उन्हें सुनिए। ठीक है सचवाला साहब, अब वो नहीं बोलेंगे, अब आप बोलिए। कह रहे हैं यार, जबान सही रखो सचिवाला भाई, हम भाई कह रहे हैं टपक। ठीक है, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है बस कादरी साहब, सचवाला साहब अब अगले 5 मिनट आपके, बोलिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कुरान इस मामले में बिल्कुल दो टोक है, स्पेसिफिक है। कुरान के मुताबिक जो काफिर की बेटी है, जो काफिर की बहन है, ये किसी मोमिन की बहन नहीं हो सकती। चूंकि बहन नहीं हो सकती तो जाहिर बात है उसको टच नहीं कर सकता, वो उसको बहन नहीं बना सकता। ये बात तो एक क्लियर है। उसके बाद अगर किसी मोमिन की भी जो है, मतलब अगर कोई बेटी है, अगर कोई मोमिन उसको अपनी बहन बनाना चाह रहा है, तब भी कुरान उसकी जो है उसकी नफी करता है, उसको रोकता, उसको कहता है कि नहीं, किसी और की बेटी तुम्हारी बेटी या तुम्हारी बहन नहीं हो सकती। मैं सही समझ पा रही हूँ मोमिन मतलब अगर किसी दूसरे मुसलमान भाई की बेटी को भी अगर आप बहन बनाना चाहते हैं तो ये कबूल नहीं है इस्लाम में।
काफिर का तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूं। ठीक है, काफिर यानी किसी और धर्म कुरान के, बिल्कुल दो टोक है, किसी और धर्म के लोगों का तो बिल्कुल ही नहीं है, सवाल नहीं उठता। अगर बिल्कुल दूर की बात है, किसी और की धर्म की बात, किसी और के धर्म की बात ही नहीं हो रही यहाँ तो यहाँ पर तो मुसलमान मोमिन के अंदर की बात हो रही है। यानी इस्लाम, यानी ईमान वाला एक मर्द, एक मुसलमान अगर अपने दोस्त की बेटी को से राखी बंधवाए अपने बेटे को, तो ये इस्लाम के जायज नहीं है, जायज ये जायज नहीं है। जी हाँ जी, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये परमिसिबल नहीं है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। इसकी मनाही कहाँ है? काफिर की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। काफिर तो इंसान ही नहीं है अकॉर्डिंग टू कुरान। ठीक है, सचवाला कुरान के मुताबिक काफिर तो गोया इंसान ही नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सचवाला साहब, ये कहाँ लिखा है कुरान में कि एक मोमिन, या हदीस में कहाँ रेफरेंस है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के बच्चों को अपनी बेटी बहन जैसे ट्रीट नहीं कर सकता? यानी कि अगर मैंने दिल से या मन से या मुंह से उसको बेटी मान लिया तो ये रिश्ता कायम नहीं हो सकता। कहाँ लिखा है? देखिए, ये सूरह तलाक में भी है, इन उम्महातुहुम इल्लल्लाहि वलदनहुम, यानी तुम्हारी माएँ वही हैं जिनको तुमने जन्म दिया, और उनका किसी और के बेटे को, किसी और की बेटी को तुम ना अपना बेटी समझ सकते हो और ना उसको अपनी बहन समझ सकते हो। ये कुरान इस मामले में क्लियर है, क्योंकि उसकी माँ अलग है और इस मोमिन की माँ अलग है। जिसकी माँ से जो जन्म लेगा वो उसी का भाई या बहन कहलाएगा, वो उसी की बेटी या उसका बेटा कहलाएगा। किसी और की माँ ये इसकी माँ नहीं है, किसी और का बेटा या बेटा इसकी बेटी नहीं है। इसीलिए तो कुरान ने जो है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो है कुरान में यानी उस शख्स जिसे जैद बिन हारिसा कहा गया है, उसकी बेटी उसकी वाइफ से जब पैगंबर इस्लाम ने जो है निकाह किया, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर वो जो है बहू है तो क्या बहू से जो है शादी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। लेकिन कुरान में बहू से शादी की जिक्र, इसका मतलब यह है कि कुरान ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जैद इनका बेटा नहीं है। भले जो है पैगंबर इस्लाम उसको अपना बेटा कहते रहे, लेकिन कुरान ने उसको नकार दिया कि जैद तुम्हारा बेटा नहीं है। उसकी वाइफ तुम्हारे लिए बिल्कुल जो है मतलब उसके साथ तुम निकाह कर सकते हो, वो तुम्हारी बहू नहीं है। ये बात कुरान क्लियर कर रहा है, क्लियर कर रहा है। मौलाना जफरुल कादरी साहब, आप बताएं। and you all are fired. देखिए, And you इन्होंने जो are promoted. जैद बिन हारसा Can you explain me नाम how ले did you रहे get promoted? हैं, मैंने शुरू It's से simple. I've been वो using चौथे पारी की ChatGPT आयत and पढ़ी other कि AI कौन tools कौन to सी do my चीजें work. हराम हैं, This way I've और been फिर able इन्होंने to एक do कहा all of their का work. नाम लिया And who कि taught you वो all उनकी this? सगी माँ नहीं This है। guy. कुरान की वो आयत पढ़ी, ये सिर्फ Hi, तर्जमा my करके name is कुरान Aditya की Kachar. आयतें I am a बयान graduate नहीं of IIT करते। Kharagpur. उसको I have clear also मैं co-founded करता हूँ। multiple 8-figure एक companies बात like देखिए, B10X, ये Mad तो About Sport and जरूरी है Mooney Tech. कि In हमारे my यहाँ 2 hours workshop, I am going to teach you दो how you माँ, can leverage एक माँ ChatGPT हकीकी by है, giving killer prompts. एक On होती top of है that, I am going to teach you अख्याफी, multiple AI एक tools होती है which will रज़ाई। make you 10x version of मतलब ये है, yourself. दो All माँओं these का things मतलब just ये at है rupees कि 299. हमने And if you पैदा register हुए before हम tonight, किसी I have के, also included लेकिन bonuses हमने worth दूध पिया 10,500 किसी का। rupees. So उस it is a जमाने में no-brainer to दाइयों join के this एतबार workshop. से दूध See you in पिलाना workshop. होता था, कुछ कमजोर होते थे, या अरब का एक जमाना था कि बच्चे जब पैदा हो जाते थे तो लोग जो गरीब होते थे वो छोटे बच्चों को ले जाकर दूध पिलाने के लिए ले जाती थी, उससे कुछ पैसा मिलता था तो वो अपने बच्चों की परवरिश कर लिया करते थे। तो वो अब जिसके हिसाब से दूध पिया है उसके भी बच्चे हैं, और जिसका बच्चा लेकर के जा रही है वो भी एक बच्चा है। तो वो माँ जिसका पेट से पैदा नहीं हुए हैं वो, लेकिन उसका दूध पिया है, तो उसकी जितनी औलाद है वो उसके रज़ाई भाई बहन कहलाएंगे। ठीक है। और जो एक मैं उसमें आ रहा हूँ मैडम, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ। इसलिए कि ये गोलमोल बोलते हैं, बहुत सारे लोग देखेंगे जब तफसील उनके जहन में जाएगी और ये तो कुरान के खिलाफ ही बोलेंगे, तो इसलिए उसको क्लियर हो जाए चाचा के जो नाज़रीन देखे। मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु, और एक बात सुनिए, वो उनका भी जिक्र आ गया कि जिनसे जिंदगी में हम निकाह कर ही नहीं सकते, वो हमेशा हमेशा हमारे लिए हराम है, उनकी तफसील कुरान ने अलग बयान फरमा दी है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की हक्कानियत सच्चाई पर मबनी है और था, और इंशाअल्लाह क़यामत तक मबनी रहेगा। सची वाला भाई जैसे लोग लाख कुरान की मुखालफत करें, उसकी हक्कानियत पर सवाल करें, इन जैसों से कुरान ना झूठा था ना होगा। मौलाना कादरी साहब, उन्होंने तो ये कहा, शुरुआत में ही कहा सचवाला साहब ने कि दूध का रिश्ता बिल्कुल जायज है, लेकिन मुंह बोला रिश्ता, यानी कि अगर आपने अपने दोस्त की बेटी को कहा कि भाई ये मेरी बेटी जैसी है या मेरी बहन जैसी है, तो वो नहीं है इस्लाम में कबूल। वो ये कह रहे हैं, वो दूध के रिश्ते को नहीं झुठला रहे हैं। हाँ, वो भी कह रहे हैं। देखिए, तो जो मैंने दूध वाली बात कही, वहां खूनी रिश्ता नहीं, वहां दूध का रिश्ता है। और ये मजहब इस्लाम उस शिद्दत को कम करने के लिए जो उस दौर में अरब की जमीन का मसला,
अरब में लोग क्या क्या करते थे। आज तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर इतने बुतों की पूजा होती भी नहीं, इतने बुत है ही नहीं। वहां तो करोड़ों हजारों की तादाद में थे। और मैंने क्लियर कहा था, काफिर कोई गाली नहीं है। काफिर और मोमिन का मतलब क्या है? मोमिन का मतलब ये है मेरे सामीन और नाज़रीन, अगर वो मुसलमान है तो रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सच और झूठ पर बिल्कुल तमाम चीजों को छोड़कर लिल्लाह बिल्लाह करके बिल्कुल सच्ची जिंदगी गुजारे, वो है मोमिन। और अगर उसने किसी चीज का, मुसलमान है, अगर उसने किसी चीज का इनकार कर दिया तो वो भी काफिर हो जाएगा। ऐसा नहीं, काफिर गाली नहीं, काफिर के माना है इनकार करने वाला। आपने मुझे चैनल पे बुलाया, कॉल की, मैंने इनकार कर दिया कि भाई मैं आज आपके चैनल पे नहीं आऊंगा, तो ये मेरा इनकार, इसका मतलब ये हुआ मैं चैनल पर आने से जो मैंने इनकार किया, मैं इसका काफिर हो गया। क्या रक्षाबंधन का त्योहार एक मुसलमान अगर मनाना चाहे तो मना सकता है? इसमें उससे कोई बुत परस्ती नहीं है, इसमें तो सिर्फ एक धागा बांधना है, डोर बांधनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैडम, मज़हब इस्लाम के ऊपर छोटी छोटी बातों को लेकर के जो तानाकशी रखते हैं लोग कि इस्लाम में ये है, ये है, इस्लाम का कुल्ली तौर पर यह है कि हत्तल इम्कान ये कोशिश होती है कि किसी की दिल आज़ारी या भटकाव या ना हो। हाँ, मज़हब इस्लाम में एक ज़ाब्ता है, एक कानून है कि शिर्क एक चीज़ होती है। हमारे साथ हैं सीमा जो पाकिस्तान से आ चुकी हैं भारत, उनके साथ हैं सचिन जिनके साथ उन्होंने शादी की है, और सीमा को भारतीय नागरिकता दी जाए, किसी तरीके का आरोप उनके ऊपर ना लगे। कानून के मोर्चे पर वकालत करने के लिए देश के जाने माने वकील एपी सिंह साहब, जो सीमा के वकील, जिम्मेदारी कबूल करने के बाद उसके साथ वो तमाम हुकूक अदा करो जो एक बाप करता है, एक भाई करता है, एक दादा करता है, एक मामा करता है। उन मुहर्रिमात की तरह उसकी हिफाजत करो जो कुरान करीम में चौथे पारे में हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व खलातुकुम व अम्मातुकुम पूरी आयत करीमा है, उसके साथ उसकी हिफाजत करो। वो नहीं हमारी खून शरीकी है, लेकिन वो इस धरती से पैदा होकर के उसने जन्म लिया है। हर इंसान के ऊपर जरूरी है कि वो उसकी हिफाजत और रक्षा करे। सचवाला साहब, आप किसी आयत का हवाला दे सकते हैं जिससे आप मौलाना साहब की बातों को झुठला सकें? जी हाँ, देखिए कुरान की सूरे अहज़ाब में ये बात क्लियर कट आई है कि जो है नबी का, कुरान के नबी ने एक लड़के को अपना जो है ले पालक बेटा बनाया था जिसका नाम है ज़ैद बिन हारिसा। वो तकरीबन जो है कई साल तक नबी के साथ रहा, और जो है ज़ैद बिन हारिसा ने, सचिवाला भाई, वो देखिए, अरे मेरे भाई एक मिनट, ज़ैद बिन हारिसा, नाम अदब से लीजिए, नाम अदब से ले लीजिए। ज़ैद बिन हारिसा, मेरी बात सुन लीजिए, नाम अदब से लीजिए, नहीं वो नाम अदब से, नाम अदब से लीजिए, आप नाम अच्छे से लीजिए, नाम अदब से लीजिए, कैसे नाम ले, वो नाम अदब से लीजिए, मुझे कुछ नहीं, आप बयान कीजिए। लेकिन ज़ैद बिन हारिसा कोई ऐसी वैसी जात का नाम नहीं है। हाँ, बस नाम अदब से लीजिए। मैं कुरान के नबी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक बच्चे को ले पालक लिया था जिसका नाम है ज़ैद बिन हारिसा। कई साल तक ज़ैद बिन हारिसा नबी के साथ रहे, और ज़ैद बिन हारिसा ने जब जिस वक्त शादी की ज़ैनब के साथ, ये शादी के कई साल के बाद नबी ने अपनी बहू से निकाह कर लिया। जिस बेटे ने जिस लड़की से शादी किया, कुछ अरसे के बाद कुरान के मुताबिक नबी ने उस अपनी बहू से शादी कर लिया, और फिर यह कहते हुए कि आज की तारीख से ले पालक वाला मामला बिल्कुल हराम है। वही बेटे तुम्हारे बेटे हैं, वही भाई तुम्हारा भाई है जिनको तुम्हारी माँ ने जो है जन्म दिया। किसी और का बेटा, किसी और की बेटी एक मोमिन के लिए वो जो है किसी भी सूरत में ना तो बहन है ना तो बेटी है। ये बात कुरान क्लियर करता है, क्लियर, उसमें कोई 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। इस आयत को पढ़ के बताइए जो आप बोल रहे हैं। मौलाना कादरी साहब, मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ बताइए। इसमें जो है सुन लीजिए, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखिए, ये सूरे अहज़ाब 33 की आयत नंबर 37 है। हाँ, आयत पढ़िए मोहतरम। ठीक है, अरे मैं पढ़ता हूँ। जी। वइज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाह व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दीहि व तख़्शन नास वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़्शा
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. اچھا اس سے پہلے کیا آیا ہے دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں مجھے آپ تجوزو کا مطلب کیا ہوگا؟ سنیے لفظ تجوزو، میری بات سن لیجیے. تجوزو پر یعنی جو ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے وہی بیٹے وہی بھائی تمہارا بیٹا تمہارا بھائی ہے جن کو تمہاری ماں نے جنم دیا ہے. دیکھیے کوئی لے پالک کا تصور میری بات سنیے نا، نہیں ہے. میں لفظ تجوزو پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، وہ پوری آیت کا ترجمہ. لفظ تجوزو سے آپ نے کیا سمجھا جو قرآن میں آیا ہے وہ بتائیے، صرف لفظ تجوزو. ارے میرے بھائی میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے وہ آپ پوری آیت کو نہیں، تجوزو کا مطلب کیا ہے؟ سن لیجئے میری بات سن لیجئے. میں آپ کی بات سن رہا ہوں. بات تو جو آپ یہ فرما رہے ہیں مولانا، سن لیجئے میری بات. آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ قرآن یعنی لے پالک کی اجازت دیتا ہے، یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے. قرآن کی کوئی ایک بھی آیت لے پالک کی اجازت نہیں دیتی، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا. میں نے جو کہا آپ اس کو بتائیے. کرنا تو دوسری بات آپ کی بات کی مخالفت کر رہی ہے. نہیں آپ مخالفت کریے. دوسری میں نے جو آپ سے بات کہی ہے، آپ پوری آیت کو جو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے. میں نے لفظ تجوزو کا مطلب پوچھا. لفظ تجوزو اس میں فاعل ہے. اس میں لفظ تزوجو نہیں ہے، اس میں لفظ تزوجو نہیں ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے. ہاں بتائیے. سنیے میں آپ کی اسی بات کی تو جو ہے مطلب میں آپ کو اس کی کلیریفیکیشن دے رہا ہوں نا. سب سے پہلے تو ارے سن لیجئے میری بات. ارے بھائی سن تو رہے ہیں. پڑھتے ہیں. ارے آپ بول پڑھ سن لیجئے نا میری بات. بولیں گے تو جہاں بولنے کی ضرورت ہوگی تو بولنا تو پڑے گا. ارے جناب عالی کچھ دیر مجھے موقع دیا جائے گا تو میں بولوں گا نا. آپ بیچ میں ٹپک پڑتے ہیں. تو ٹپک تو اس لیے پڑیں گے جب آپ غلط بولو گے تو بولنا پڑے گا بھائی. میں آپ کو پورا موقع دوں گی، ایک بار ذرا ان کی بات ختم ہو جائے پھر آپ ان کو کاؤنٹر کر دیجئے گا. بتائیے جی سچ والا صاحب. قرآن اس معاملے میں کہہ رہا ہے جو لے پالک کی اجازت قرآن نہیں دیتا، بھلے وہ بیٹی ہو یا جو ہے بیٹا ہو یا جو ہے یا بھائی ہو یا بہن. یہاں اصل ہمارا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ رکشا بندھن اسی صورت میں جو ہے جائز ہے یا قرآن کے مطابق جو اس کی سگی بہن ہے یا دودھ شریک بہن ہے. جو نامحرم ہے اس کے ساتھ اس کو ٹچ کرنا یا اس کو اپنی بہن نہیں کہہ سکتا. قرآن کسی کو بھی بہن یا بیٹی کہنے کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے مولانا ظفر قادری صاحب. جی میں نے اس پر تو اپنا موقف کلیئر کر دیا ہے میڈم. دیکھیے کچھ مسلم بہنیں ایسی ہیں کہ جو وہ باپردہ رہتی ہیں، وہ کوئی سروس نہیں کرتی، کہیں نہیں جاتی، مارکیٹ میں بھی نہیں جاتی، بھائی بہن کرتے ہیں، ان کا ایک تعلق الگ ہے. وہ بہنیں جو ہماری جاب کرتی ہیں، آفسوں میں جاتی ہیں، باپردہ ہیں، سب کچھ ہیں، رہتی ہیں، اگر وہ ہاتھ کو بلند کرنے کے بعد جو ان کے آفس وغیرہ میں کام کرتی ہیں، اگر انہوں نے اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے بلند کر کے اس کو بھائی سمجھ لیں اور اس نے بھی قرآن کی اور حدیث کی بات الگ ہے، بہتر ہے، انسانیت کے ناطے وہ آ رہی ہے، اس نے کہا کہ تم میری بہن ہو، اور وہ پھر بہن ہونے کا پالن کر کے بہن ہونے کے تمام حقوق وہ ادا کرتا ہے، وہ بہن ہونے کے ناطے ادا کرتی ہے، اور اس نے ایک کاغذ، ایک بندھن کا اس کا دھاگے کا ٹکڑا یا جو بھی آج کل مارکیٹ میں بنتی ہیں، اگر اس نے وہ ہاتھ میں باندھ دیا اور وہ نبھاتے ہیں دونوں، وہ بہن بن کے نبھاتی ہے، وہ بھائی ہو کر کے نبھاتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. انسانیت کے ناطے یہ رشتہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن کیا اسلام کے ناطے یہ رشتہ صحیح ہے؟ دیکھیے انسان جہاں یہ ہمارا مذہب بہت فطرت بھی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت. اسلام میں اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، تکلیف دہ نہیں ہے، سب سے آسان مذہب ہے مذہب اسلام. زبردستی نہیں کرتا. لا یکلف، کلف یکلف یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع دو معنی کے لیے آتا ہے، اور یہ باب مفالت سے ہے. میں پورے اس قرآن کی فصاحت و بلاغت، معنی، عرفان، قرآن کے 70,450 علوم ہیں، اس کے اعتبار سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فعل مضارع ہے. یکلف، اس کا مادہ آتا کلف، برداشت کرنا، اسی سے فعل مضارع ہے. کلف یکلف تکلیفا فہو مکلف، کسی کو نہ تکلیف دیتا ہے نہ دے گا. قرآن کی صاف تفصیل ہے. انسانیت
बेहतरीन जिंदगी है, इंसानियत नहीं होती, मजहब इस्लाम इतना आगे नहीं बढ़ता। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों ने पत्थर बरसे, उन्होंने कभी पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दिया, लोगों ने गालियां दी, उनकी राहों में कांटे बिछाए गए, उनकी राटों में कूड़ा डाला गया, कभी नहीं किया, उनको माना, गले लगाया, कभी इस्लाम के खिलाफ उन्होंने कोई चीज नहीं की, तभी तो लोग आते चले गए, हल्का बगोशे इस्लाम होते चले गए, छोटा था शिराजा था, आज पूरी दुनिया में ये मुंतशिर होकर ये लहरा, सचवाला साहब ने कुरान शादाब है और ये चमन लहरा रहा है। लोग मान भी रहे हैं और ना भी मान रहे हैं, जो मान रहे हैं उनके लिए सच्चा है, जो इनकार करते हैं वो उससे इनकार करते रहे, मौलाना हमें कादरी कोई साहब, दुश्वारी नहीं। जैसे सचवाला साहब ने अपनी बात का समर्थन करने के लिए कुरान और हदीस और उसके इंसिडेंट का हवाला दिया, क्या इस बात को जायज ठहराने के लिए कि अगर कोई अपने मन से किसी को अपना भाई और बहन स्वीकार कर लेता है तो ये रिश्ता इस्लाम में जायज है, आप किसी हदीस या कुरान का हवाला दे सकते हैं? ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा मा कसबत अयदीहिम, मैंने कुरान का हवाला दिया। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व खलातुकुम व अम्मातुकुम, उसका हवाला दिया। मुहर्रिमात होना जरूरी है कि जिनसे निकाह हराम है उनका भी दिया। और सचे वाला साहब ने जो आयत पढ़ी, मैंने उसका मतलब पूछा, वो बात को घुमा के ले गए। यहाँ तो हर चीज का जवाब है, मैं तो उसका जवाब दे रहा हूं मैडम, जो लोग कहते हैं कि मजहब इस्लाम बड़ा कड़क है, बड़ा सख्त है, बड़ा शिद्दत वाला है। कुरान कहता है ला युकल्लिफु नफ्सन, किसी जान को, किसी इंसान को, इंसान में मर्द भी है औरत भी है, वसा उसकी ताकत के एतबार से उसको तकलीफ नहीं देता। जो है उसको मानो, उसका सम्मान करो। इतना मुलायम, इतना लचकदार, इतना मुलायम कोई मजहब ही नहीं है जो मजहब इस्लाम। सचवाला साहब, आपने हवाला सुना जो यहाँ पर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कादरी साहब ने दिया है, आपने उनकी तमाम बातों को सुना है, तो फिर आप क्यों ये गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं इस्लाम से ज्यादा लचीला मजहब ही नहीं है और इस्लाम इजाजत देता है मुंह बोले बहन और भाई बनाने की। ने सुन लीजिए, हर दही वाली अपने दही को जो है बिल्कुल मीठा कहती है। यहाँ बात वो नहीं हो रही, जो टॉपिक है, टॉपिक की तायीद में मौलाना के पास कोई ना एक कुरान की आयत है, ना कोई हदीस जो है सही हदीस है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, जो अभी पढ़ा वो क्या था? आप टपक पढ़ते हैं बीच में। अरे जब आप ऐसी बात करोगे तो टपकना जरूरी है। सुन रहा हूँ, आपके पास एक भी कुरान की आयत नहीं है, आपकी बात की ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा मा कसबत अयदीहिम, कुरान नहीं तो क्या है? अरे जनाब आली, हुर्रिमत अलैकुम आप मुझे बोलने नहीं देते, आप मुझे बोलने नहीं देते, खुद ही बोले जा रहे हैं। कुरान नहीं तो क्या है? अरे यार, आप जो है बातों से कोई, आप अपनी बात की तायीद नहीं कर सकते। ठीक है मौलाना कादरी साहब ने, ठीक है मौलाना कादरी साहब, मैं पूछ रही हूँ, आप एक मिनट, आपने सचवाला साहब, आपने तीनों उनकी, देखिए मैं नहीं समझती हूँ ये भाषा, ना मैं ये मजहब समझ रही हूँ, मैंने सवाल उठाया और आप दोनों को कार्यक्रम में बुलाया ताकि सही बात सामने जा सके। कादरी साहब ने जो आयतें पढ़कर सुनाई, जो रेफरेंसेस पढ़कर सुनाए, क्या वो सही नहीं है? और नहीं है तो आप उन्हें गलत साबित करें। अरे नहीं जनाब, नहीं मोहतरमा, कादरी साहब वो सारे कुरान पढ़ रहे हैं जिसका असल टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ, कादरी साहब जितनी बातें पढ़ रहे हैं वो उनके रटी हुई आयतें हैं। मैं उनसे यही कहना चाह रहा हूं कि जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है? सबसे पहली बात तो क्लियर सुन लीजिए, एक मोमिन किसी काफिर की लड़की, किसी उसकी बेटी को अपनी बहन या बेटी नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। भाईजान एक बात, कुरान इस बारे में बिल्कुल क्लियर करता है। यही जनाब आली, इस काफिर से आप क्या सुन तो लीजिए, आप फुतूलियात जब से आप जो है बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, आप मुझे कुछ बोलने दीजिए ना, सुनना नहीं है आपको। जहां आप कहेंगे तो थोड़ा बात क्लियर होती जाएगी ना। एक भी आयत नहीं है आपके पास। मैं आपसे कह रहा हूं कि कुरान काफिर और मोमिन की बिल्कुल दरार डालता है। और किसी काफिर की बहन, मोमिन और काफिर में आप फर्क बयान कीजिए, मोमिन और काफिर का फर्क बयान कीजिए, नहीं तो मैं करता हूं, मैं बताता हूं भाई। नहीं, हाँ, अरे सुनते भी नहीं आप, जो है आप जब से कहे जा रहे हैं सुनना नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ, मेरी बात भी सुनना नहीं है आपको? नहीं, मैं सुनूंगा मेरे भाई, नहीं ऐसी बात नहीं, मैं आपको सुनूंगा। कादरी साहब, एक बात सुनिए, कादरी साहब आपने अपनी पूरी बात रखी, 5 मिनट उन्हें बिना भी 5 मिनट बिना रुके उन्हें भी बोलने दीजिए ना। कादरी साहब आपने अपनी पूरी बात रखी है, 5 मिनट बिना बोले उन्हें सुनिए। ठीक है सचवाला साहब, अब वो नहीं बोलेंगे, अब आप बोलिए। कह रहे हैं यार, जबान सही रखो सचिवाला भाई, हम भाई कह रहे हैं टपक। मुझे बोलने दीजिए। ठीक है बस कादरी साहब, सचवाला साहब अब अगले 5 मिनट आपके, बोलिए।
دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن اس معاملے میں بالکل دو ٹوک ہے، اسپیسیفک ہے. قرآن کے مطابق جو کافر کی بیٹی ہے، جو کافر کی بہن ہے، یہ کسی مومن کی بہن نہیں ہو سکتی. چونکہ بہن نہیں ہو سکتی تو ظاہر بات ہے اس کو ٹچ نہیں کر سکتا، وہ اس کو بہن نہیں بنا سکتا. یہ بات تو ایک کلیئر ہے. اس کے بعد اگر کسی مومن کی بھی جو ہے مطلب اگر کوئی بیٹی ہے، اگر کوئی مومن اس کو اپنی بہن بنانا چاہ رہا ہے، تب بھی قرآن اس کی جو ہے اس کی نفی کرتا ہے، اس کو روکتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ نہیں، کسی اور کی بیٹی تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن نہیں ہو سکتی. میں صحیح سمجھ پا رہی ہوں مومن مطلب اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی کی بیٹی کو بھی اگر آپ بہن بنانا چاہتے ہیں تو یہ قبول نہیں ہے اسلام میں. کافر کا تو بالکل ہی نہیں ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، کافر یعنی کسی اور دھرم قرآن بالکل دو ٹوک ہے. کسی اور دھرم کے لوگوں کا تو بالکل ہی نہیں ہے، سوال نہیں اٹھتا. بالکل دور کی بات ہے. کسی اور کی دھرم کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں. تو یہاں پر تو مومن کے اندر کی بات ہو رہی ہے. یعنی اسلام ایمان والا ایک مرد، ایک مسلمان اگر اپنے دوست کی بیٹی کو سے راکھی بندھوائے اپنے بیٹے کو تو یہ اسلام کے جائز نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے. جی ہاں جی. This is not permissible. یہ پرمیسیبل نہیں ہے. میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. اس کی مناہی کہاں ہے؟ کافر کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کافر تو انسان ہی نہیں ہے اکارڈنگ ٹو قرآن. ٹھیک ہے، قرآن کے مطابق کافر تو گویا انسان ہی نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. سچوالا صاحب یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ ایک مومن یا حدیث میں کہاں ریفرنس ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بچوں کو اپنی بیٹی بہن جیسے ٹریٹ نہیں کر سکتا؟ یعنی کہ اگر میں نے دل سے یا من سے یا منہ سے اس کو بیٹی مان لیا تو یہ رشتہ قائم نہیں ہو سکتا. کہاں لکھا ہے؟ دیکھیے یہ سورہ طلاق میں بھی ہے، ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، یعنی تمہاری مائیں وہی ہیں جن کو تم نے جنم دیا، اور ان کا کسی اور کے بیٹے کو، کسی اور کی بیٹی کو تم نہ اپنا بیٹی سمجھ سکتے ہو اور نہ اس کو اپنی بہن سمجھ سکتے ہو. یہ قرآن اس معاملے میں کلیئر ہے، کیونکہ اس کی ماں الگ ہے اور اس مومن کی ماں الگ ہے. جس کی ماں سے جو جنم لے گا وہ اسی کا بھائی یا بہن کہلائے گا، وہ اسی کی بیٹی یا اس کا بیٹا کہلائے گا. کسی اور کی ماں یہ اس کی ماں نہیں ہے، کسی اور کا بیٹا یا بیٹا اس کی بیٹی نہیں ہے. اسی لیے تو قرآن نے جو ہے، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے قرآن میں یعنی اس شخص جسے زید بن حارثہ کہا گیا ہے، اس کی بیٹی اس کی وائف سے جب پیغمبر اسلام نے جو ہے نکاح کیا، یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اگر وہ جو ہے بہو ہے تو کیا بہو سے جو ہے شادی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. لیکن قرآن میں بہو سے شادی کی ذکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے اس بات کو بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ زید ان کا بیٹا نہیں ہے. بھلے جو ہے پیغمبر اسلام اس کو اپنا بیٹا کہتے رہے، لیکن قرآن نے اس کو نکار دیا کہ زید تمہارا بیٹا نہیں ہے. اس کی وائف تمہارے لیے بالکل جو ہے مطلب اس کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، وہ تمہاری بہو نہیں ہے. یہ بات قرآن کلیئر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، مولانا ظفر القادری صاحب آپ بتائیں. دیکھیے انہوں نے جو بار بار زید بن حارثہ کا نام لے رہے ہیں، میں نے شروع سے وہ چوتھے پارے کی آیت پڑھی کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں، اور پھر انہوں نے ایک کہا کہ سورت کا نام لیا کہ وہ ان کی سگی ماں نہیں ہے. قرآن کی وہ آیت پڑھی. یہ صرف ترجمہ کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں یہ بیان نہیں کرتے. اس کو کلیئر میں کرتا ہوں. ایک بات دیکھیے، یہ تو ضروری ہے کہ ہمارے یہاں دودھ دو مائیں، ایک مائیں حقیقی ہے، ایک ہوتی ہے اخیافی، ایک ہوتی ہے رضائی. مطلب یہ ہے دو ماؤں کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پیدا ہوئے ہم کسی کے، لیکن ہم نے دودھ پیا کسی کا. اس زمانے میں دائیوں کے اعتبار سے دودھ پلانا ہوتا تھا، کچھ کمزور ہوتے تھے، یا عرب کا ایک زمانہ تھا کہ بچے جب پیدا ہو جاتے تھے تو لوگ جو غریب ہوتے تھے وہ چھوٹے بچوں کو لے جا کر دودھ پلانے کے لیے لے جاتی تھی، ان سے کچھ پیسہ ملتا تھا تو وہ اپنے بچوں کی پرورش کر لیا کرتے تھے. تو وہ اب جس کے حساب سے دودھ پیا ہے اس کے بھی بچے ہیں، اور جس کا بچہ لے کر کے جا رہی ہیں وہ بھی ایک بچہ ہے. تو وہ ماں جس کا پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے ہیں وہ، لیکن اس کا دودھ پیا ہے، تو اس کی جتنی اولاد ہے وہ اس کے رضائی بھائی بہن کہلائیں گے. ٹھیک ہے. اور جو ایک میں اس میں آ رہا ہوں میڈم، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ گول مول بولتے ہیں. بہت سارے لوگ دیکھیں گے جب تفصیل ان کے ذہن میں جائے گی، اور یہ تو قرآن کے خلاف ہی بولیں گے. تو اس لیے اس کو کلیئر ہو جائے چاہتا کہ جو ناظرین دیکھیں. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ. اور ایک بات سنیے، وہ ان کا بھی ذکر آ گیا کہ جن سے زندگی میں ہم نکاح کر ہی نہیں سکتے، وہ ہمیشہ ہمارے لیے حرام ہے. ان کی تفصیل قرآن نے الگ بیان فرما دی ہے. وہ بھی الحمدللہ قرآن کی حقانیت سچائی پر مبنی ہے اور تھا، اور انشاءاللہ قیامت تک مبنی رہے گا. سچی والا بھائی جیسے لوگ
लाख कुरान की मुखालफत करें, उसकी हक्कानियत पर सवाल करें, इन जैसों से कुरान ना झूठा था ना होगा। मौलाना कादरी साहब, उन्होंने तो ये कहा, शुरुआत में ही कहा सचवाला साहब ने कि दूध का रिश्ता बिल्कुल जायज है, लेकिन मुंह बोला रिश्ता, यानी कि अगर आपने अपने दोस्त की बेटी को कहा कि भाई ये मेरी बेटी जैसी है या मेरी बहन जैसी है, तो वो नहीं है इस्लाम में कबूल। वो ये कह रहे हैं, वो दूध के रिश्ते को नहीं छुटका रहे हैं। हाँ, वो भी कह रहे हैं। देखिए, तो जो मैंने दूध वाली बात कही, वहां खूनी रिश्ता नहीं, वहां दूध का रिश्ता है। और ये मजहब इस्लाम उस शिद्दत को कम करने के लिए, जो उस दौर में अरब की जमीन का मसला, अरब में लोग क्या क्या करते थे। आज तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर इतने बुतों की पूजा होती भी नहीं, इतने बुत है ही नहीं। वहां तो करोड़ों हजारों की तादाद में थे। और मैंने क्लियर कहा था, काफिर कोई गाली नहीं है। काफिर और मोमिन का मतलब क्या है? मोमिन का मतलब यह है मेरे सामीन और नाजरीन, अगर वो मुसलमान है तो रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सच और झूठ पर बिल्कुल तमाम चीजों को छोड़कर लिल्लाह बिल्लाह करके बिल्कुल सच्ची जिंदगी गुजारे, वो है मोमिन। और अगर उसने किसी चीज का, मुसलमान है, अगर उसने किसी चीज का इनकार कर दिया तो वो भी काफिर हो जाएगा। ऐसा नहीं, काफिर गाली नहीं, काफिर के माना है इनकार करने वाला। आपने मुझे चैनल पे बुलाया, कॉल की, मैंने इनकार कर दिया कि भाई मैं आज आपके चैनल पे नहीं आऊंगा, तो ये मेरा इनकार, इसका मतलब ये हुआ मैं चैनल पर आने से जो मैंने इनकार किया, मैं इसका काफिर हो गया। क्या रक्षाबंधन का त्योहार एक मुसलमान अगर मनाना चाहे तो मना सकता है? इसमें उससे कोई बुत परस्ती नहीं है, इसमें तो सिर्फ एक धागा बांधना है, डोर बांधनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैडम, मज़हब इस्लाम के ऊपर छोटी छोटी बातों को लेकर के जो तानाकशी रखते हैं लोग कि इस्लाम में ये है, इस्लाम का कुल्ली तौर पर ये है कि हत्तल इम्कान ये कोशिश होती है कि किसी की दिल आज़ारी या भटकाव या ना हो। हाँ, मज़हब इस्लाम में एक ज़ाब्ता है, एक कानून है कि शिर्क एक चीज़ होती है। शिर्क का मतलब मैं अपने सामईन और नाज़रीन जो इस तमाम न्यूज़ को देखते हैं, देख रहे हैं, शिर्क बेहतरीन गुनाह है, बदतरीन गुनाह है। शिर्क का मतलब ये होता है जिसकी हम इबादत करते हैं, परवरदिगारे आलम, उसकी ज़ात या सिफ़ात में किसी को शरीक मान करके उसकी इबादत करना, उसकी परस्तिश करना, उसकी पूजा करना, ये शिर्क है। अब आते हैं अपन मौजू के ऊपर। और इसके अलावा जो हर बात पर कुफ्र का मतलब होता है, ये कुफ्र जो है अरबी लफ्ज़ है, इसके माना आते हैं इनकार करना, नाफरमानी करना। कुफ्र कोई बहुत बड़ी गाली नहीं है, बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं है कि सर पे आकर के किसी के गिर जाए और वो फना हो जाए। आज मैं बता देना चाहता हूँ न्यूज़ नेशन की जानिब से कि कुफ्र के माना होते हैं इनकार, और ये इसमें फ़ाइल का सीगा अरबी के एतबार से काफिरुन, शाबिरुन, शाकिरुन, जाबिरुन, काहिरुन, माहिरुन, ये सब इसमें फ़ाइल के सीगे हैं। इसमें फ़ाइल का मतलब होता करने वाला। मिसाल के तौर पर एक चीज़ किसी ने कहा कि भाई ये आप कर दीजिए, उसने उसका इनकार कर दिया तो उसके ऊपर कोई जुल्म सितम नहीं होगा, तो काफिर कोई गाली नहीं है। काफिर के माना इनकार करने वाला। अब वो जिस शय का इनकार करेगा वो उसका मुनकिर हो जाएगा। अब आइए इस टॉपिक के ऊपर, अगर अभी किसी ने, चाहे वो उसकी दूध शरी की बहन नहीं है, दूध शरी का भाई नहीं है, लेकिन उसने दिल के साथ उसको अपनी बहन माना और उसकी रक्षा की, रक्षा के माने हिफाजत, सियानत, दियानत, अमानत, मोहब्बत, लगन के साथ अगर उसने किसी गैर मुस्लिम बहन को, बेटी को अपनी बहन मान लिया, चाहे वो दूध शरीकी नहीं, और वो तमाम चीजें उसने जिंदगी में उसके साथ की जो अपनी दूध वाली बहन के साथ, खून वाली बहन के साथ कर रहा है, तो कुरान इसकी इजाजत देता है। इतना अछूता मजहब नहीं है कुरान, या इतना ओछा नहीं है। दुनिया में रहने के बाद अगर किसी गैर मजहब की बेटी की अगर हम हिफाजत करने, उसकी मोहब्बत करें, तो कुरान इसकी इजाजत देता, उसका मुखालफत कुरान करीम नहीं करता। सचवाला साहब, यहाँ पर तो मौलाना ज़फरुल कादरी साहब कह रहे हैं कि कुरान ऐसा कोई अछूत मजहब नहीं बनाता है इस्लाम को। वो कहता है कि अगर आप किसी की रक्षा करना चाहें, यानी कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहें, किसी को दिल से कबूल करें अपनी बहन के तौर पर, जो रिश्ता दूध की बहन से रखते हैं वही रखें, तो बिल्कुल इसकी इजाज़त है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कलाई पर राखी भी बंधवा ले तो कोई गुरेज नहीं। जी नहीं, कुरान की ऐसी कोई आयत मौलाना की जो है बात की तायीद नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती।
قرآن اس معاملے میں بالکل کلیئر کٹ ہے کہ جس کا رشتہ خون کا ہے یا دودھ کا ہے وہی اس کی بہن کہلائے گی، وہی اس کی بہن ہے۔ ویسے بھی کافر کی بہن یا کافر کی بیٹی کسی مومن کی بہن ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ ایمان نہ ڈالے۔ قرآن کے مطابق یہ بات جو آپ جو مولانا فرما رہے ہیں بالکل بھی غلط ہے۔ قرآن کی کوئی ایک بھی آیت مولانا کی تائید نہیں کرتی، جبکہ قرآن اس معاملے میں کہتا ہے کہ کسی کو چھو بھی نہیں سکتے اس نیت